Hi you guys, my name is Manish Anand and welcome back to Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Now before we start today's show, you guys know the drill. Don't forget to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. किसके साथ फ्लर्ट करते नजर आए चिरंजीवी? क्यों कंगना ने तुनिशा शर्मा की डिमाइस को मर्डर कहा? किस तरह नेटिजन्स ने याद दिलाया विवेक अग्निहोत्री को उनका बेशरम रंग? किस टीवी सेलेब्स ने क्रिएट किया बज़ ऑन सोशल मीडिया? गाइस, कंगना रनावत पंगे लेने के लिए माहिर है, फिर चाहे वो अपने को स्टार्स और कॉलीग्स के साथ हो या फिर पॉलिटिशियंस के साथ. The actor makes sure to express her views on cases or events that gain national attention and often makes controversial statements that fuel more drama around the event. तुनिशा के डिमाइस को लेकर भी कंगना ने कई सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किए हैं that are controversial as usual. Take a look. कंगना रनौत ने कहा कि तुनिशा का गुजरना एक हत्या मर्डर है. कंगना ने सोशल मीडिया पे कई पोस्ट शेयर किए और प्रधानमंत्री से मांग की कि औरतों को बचाने के लिए सख्त कानून बनाए जाए. कंगना रनावत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर तुनिशा के डिमाइस से जुड़े कई सोशल मीडिया पोस्ट्स शेयर किए हैं. कंगना ने अपने पहले सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एक लड़की कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है लेकिन धोखा नहीं. She goes on to claim that when a woman realizes that all the emotions she felt were being reciprocated turn out to be a lie, वो अपने आप पे विश्वास खो देती है. कंगना ने इस पोस्ट के अंत में लिखा कि तुनिशा का डिमाइस एक हत्या है. कंगना went on to call this situation murder and continued, she can't trust her own perception in such a state. One feels no difference in being alive or dead after all. Life is just our perception, and if she decides to end her own life, please know she didn't do it alone. It's a murder. The actor then went on to share 2 more social media posts tagging the Indian Prime Minister. Kangana ने अपने पोस्ट में लिखा, I request Honorable Prime Minister, like Krishna rose for Draupadi, like Ram took a stand for Sita, we expect you to make strong laws against polygamy without consent, acid attacks against women, and of course, chopping them into many pieces should amount to immediate death sentence without trial. But while she may have her opinions on Tunisha's case, actor turned politician जया सुधा ने कंगना रनावत पे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया है. जया सुधा जी ने कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट सदर्न एक्टर्स को एक्नॉलेज नहीं करती. The actor questioned how Kangana received awards of national recognition so soon and added, I'm okay with Kangana getting Padma Shri. She is an amazing actress. Yet she received that award within 10 films. Over here, we work on many films yet not recognized by the government. जया सुधा जी ने और भी कई एग्जाम्पल्स दिए जहां सदर्न फिल्म्स डायरेक्टर्स और एक्टर्स को सरकार ने ड्यू रिकॉग्निशन नहीं दी है. जया सुधा जी ने कहा, even Vijaya Nirmala, the woman director who is in Guinness Records, hasn't received such appreciation. Sometimes I feel bad that the South is not being appreciated by the government. In the meanwhile, director duo Abbas Mastan have expressed their shock at Tunisha's demise. Tunisha was a part of their film Three Monkeys, जो अब posthumously ही रिलीज होगी. Abbas Mastan ने कहा, it is a very sad and disappointing news that at such a young age of 20, she took a drastic step without thinking about her mother and others in the family. Taking such a step is never right. We worked with her in the movie and we cannot believe, having known her, that she could take such a step. Well, कंगना जी वाकई इस मामले में लकी हैं. बस अब उनकी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पे कुछ बिजनेस कर जाएं तो वाकई कमाल हो जाएगा. विवेक अग्निहोत्री ने फिर से कोशिश की पठान के मेकर्स को शेम करने की, लेकिन नेटिजन्स ने उन्हें याद दिलाए उनकी फिल्म हेट स्टोरी के बेशरम रंग. Vivek Agnihotri found unexpected success with his film The Kashmir Files earlier this year, and ever since then उन्होंने अपने आप को एक moral high horse पे बिठा दिया है, जहां से वो अपने रिलीजन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं.
बट अनफॉर्चुनेटली कश्मीर फाइल्स की सक्सेस उनके करियर में पुरानी फाइल्स को डिलीट नहीं कर सकती। टेक अ लुक। Vivek Agnihotri has been notorious for making controversial comments that are often tainted with sectarian thoughts. उनके सोशल मीडिया पे अक्सर लोगों से मतभेद हो जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो अपने ही कॉलीग्स को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। विवेक ने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक छोटी लड़की बॉलीवुड फिल्म्स को स्किन शो और alleged vulgarity के लिए क्रिटिसाइज करती हैं। The girl in the video alleges कि provocative content देखने से लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है। The girl then requests makers to make clean content जिसे पूरी फैमिली के साथ देखा जा सके। इंटरेस्टिंगली जब वो ये बात करती हैं, पठान का गाना बेशरम रंग स्प्लिट स्क्रीन पे चल रहा है, clearly indicating which song has led to the creation of this video. विवेक ने ये प्रॉब्लमैटिक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, Warning, #PNV video against Bollywood. Don't watch it if you are a secular. However, this time around विवेक की ये पोस्ट netizens को पसंद नहीं आई है and they have called him out for his own बेशरम रंग from the past. नेटिजन्स ने विवेक की मेमोरी रिफ्रेश करते हुए उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने किसी जमाने में हेट स्टोरी जैसी एक्सप्लिसिट फिल्म बनाई थी। शायद उस फिल्म का भी लोगों पर बुरा असर ही पड़ा होगा। एक यूजर ने हेट स्टोरी का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 3 मिनट के सॉन्ग से अश्लीलता आ गई, पूरे 3 घंटे की इस मूवी में कौन से संस्कार दे रहा था। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दूसरे यूजर ने लिखा, विवेक जी ये आपकी ही बनाई हुई पारिवारिक फिल्म है ना। A third user wrote, You have gone so low in your life that I doubt you could ever recover from this phase. Irrelevant, shameless. तुझे तो गाली देकर भी गाली की इंसल्ट होगी। Another also dug out an offensive old social media post of his जहां उन्होंने कहा था, By staring at certain parts of a woman's body, a man can increase his lifespan by 5 years. लगता है ये पुरानी यादें ताज़ा होने के बाद विवेक सोशल मीडिया पे अपने ही कॉलीग्स को ह्यूमिलिएट करना बंद कर देंगे। Why spread hate when you can have a hate story of your own, right विवेक? मलाइका अरोरा और अमृता अरोरा के बीच बढ़ रहा है तनाव। मलाइका के शो पे उनके और अमृता के बीच हो रहे हैं बार बार झगड़े। Malaika is seen accusing Amrita of not being there for her or making an effort to spend time with her. मलाइका अरोरा इज अ मल्टीफैसेटेड पर्सनालिटी। वो एक एक्टर है, डांसर है, रियलिटी शो होस्ट है एंड शी ऑल्सो रन्स हर ओन योगा स्टूडियो। मोस्ट रिसेंटली उनकी लाइफ पे बेस्ड रियलिटी शो एक OTT प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम होने लगा। There have been quite a few instances of Malaika and her sister Amrita having differences of opinion and it looks like दोनों के बीच काफी नए पुराने issues हैं। Take a look. Malaika Arora and her sister Amrita Arora seem to be dealing with a lot of issues. मलाइका के रियलिटी शो पे दोनों के बीच काफी आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड इन द लेटेस्ट एपिसोड दैट स्टार्टेड स्ट्रीमिंग दिस वीक द इश्यूज बिटवीन द सिस्टर्स ओनली सीम टू बी वर्सनिंग। मलाइका और उनकी बहन अपने पास झगड़े भुला के गोवा गए टू हैव अ गुड टाइम, लेकिन वहां भी दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो गई। इन द प्रोमो ऑफ एन अपकमिंग एपिसोड मलाइका और अमृता के बीच फिर से आर्ग्यूमेंट्स होते हुए नजर आते हैं। मलाइका इज सीन टेलिंग अमृता ऑन द बीच कि जब उन्हें अपनी बहन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, her sister wasn't there for her. Malaika can be seen saying, When I went through the lowest in my life, I needed you the most as my sister. You weren't there. You've been an amazing mother, wife, and friend. When will you be an amazing sister? In a recent episode, Malaika and Amrita are seen getting into a fight at a restaurant in front of other guests. Malaika is seen shouting at other people around her as she looks frantically for her phone. अमृता ने उनकी हेल्प करने की कोशिश की तो मलाइका ने गुस्से में उनसे पूछा if she was playing a prank on her. अमृता अपनी बहन को हेल्प करती रही but commented on her sister's behavior as just high drama all the time.
Even after the phone was found on the table itself, मलाइका और अमृता के बीच झगड़ा जारी रहा और आखिर में अमृता ने मलाइका को वहां से भेज दिया और कहा कि वो उनके साथ नहीं बैठना चाहती। In another episode this week, मलाइका अमृता से नाराज हो जाती हैं क्योंकि वो क्रिसमस पे अपनी बहन से मिलने की जगह वेकेशन पर चली जाती है। Malaika is seen telling her sister, I am sitting here decorating the house, doing a Christmas lunch, wanting to plan all of this and you are not available. You didn't even tell me. Later in the episode, जब मलाइका को पता चलता है कि अमृता उनके साथ न्यू ईयर्स भी नहीं सेलिब्रेट करने वाली हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। When she confronts Amrita about not telling her about her change of plans, अमृता उनसे गुस्से हो जाती है और कहती है, You just think you can say things and get away with it. We've all to be on board with us being picked on. If things are done to you, a hell would break loose. Looks like इस शो के जरिए मलाइका और अमृता के बीच या तो ये इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे या फिर the reality of their fragile relationship will be out in the open for everyone to see. तो गाइस ज़ूमिफाई हुए आप? नहीं समझे? ज़ूम पे अपने फेवरेट गाने और प्रोग्राम्स तो आप एंजॉय करते ही हैं, लेकिन अब आपको मिल रहा है मौका ज़ूमिफाई होने का। गाने एंजॉय करने के साथ साथ खेलो बॉलीवुड क्विज, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के साथ उन पर देखो अनोखे ट्रिविया और हर ब्रेक में एक नया सरप्राइज होगा। और अगर आप में है डांस का हुनर तो आपको मिल सकता है मौका ज़ूम टीवी पर आने का। बस चैनल पर दिखाए गए किसी भी गाने पर अपने डांसिंग वीडियो शूट करो और इंस्टाग्राम रील्स पे #Zoomify के साथ अपलोड करो। अगर आपके वीडियोस हमें पसंद आए तो हम उन्हें अपने चैनल ज़ूम टीवी पर दिखाएंगे। सो देर किस बात की, ट्यून इन टू ज़ूम और हो जा ज़ूमिफाई। अब हर रोज ज़ूम देखो और पाओ मौका ज़ूमिफाई होने का। अब ज़ूम टीवी पे आना है बस कुछ स्टेप्स दूर। ज़ूम देखो, ट्रेंडिंग गाने के हुक स्टेप्स पर अपना डांस वीडियो बनाओ, अपने वीडियो को वर्टिकल मोड में शूट करो, डिस्क्रिप्शन में #Zoomify मेंशन करो और ज़ूम टीवी को टैग करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड करो। बेस्ट वीडियोस को मिलेगा मौका टीवी पे आने का। तो देर किस बात की, हो जाओ ज़ूमिफाई। और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। गाइस, उर्वशी रौतेला अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, फिर उनके फैशन चॉइसेस के लिए हो, उनकी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए, या फिर उनके alleged connections to a certain Mr. RP. But this time around, Urvashi ji is the center of attention because she has got all the attention. Take a look. Okay, Urushi, please sit down. Thank you. And you've done a fantastic job. And together, yeah. Okay, Nisha. Jay, look up. मेगास्टार चिरंजीवी फ्लर्ट करते नजर आए उर्वशी रौतेला के साथ। Yeah. Okay, Nisha. Jay, look up. చేతికే పెట్టుకుందా అయస్కాంతం ఇక్కడ పెట్టుకోలేదు। मेगास्टार चिरंजीवी ने बांधे उर्वशी रौतेला के लिए तारीफों के पुल। उर्वशी मौजूद थी चिरंजीवी सर की अपकमिंग फिल्म वॉल्टेयर विराया के प्रेस मीट पर, क्योंकि वो इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग कर रही हैं। मेगास्टार चिरंजीवी, एक्टर रवि तेजा और वॉल्टेयर विराया की पूरी कास्ट और क्रू मौजूद थी एट द प्रेस मीट फॉर द फिल्म। ये इवेंट हैदराबाद में ऑर्गेनाइज हुआ था एंड उर्वशी रौतेला, जो इस फिल्म में एक आइटम नंबर कर रही हैं, was also part of the gathering. What was interesting was that megastar चिरंजीवी उर्वशी की खुल के तारीफ कर रहे थे और उन्हें देख के काफी प्रभावित थे। उर्वशी की तारीफ करते हुए चिरंजीवी सर ने कहा, Urvashi has done a fantastic job in Boss Party. It's wonderful working with her. I didn't know who was doing the song, but when I got to know it was Urvashi, I was very excited. उर्वशी ने जब अपनी तारीफ सुनी, वो उठकर चिरंजीवी सर से हाथ मिलाने गई। The veteran actor then pretended to have felt electric current while shaking her hand. He acted like he couldn't release his hand, and after being offered water,
चिरंजीवी सर ने उर्वशी के साथ अपना फ्लर्टेशियस टोन मेंटेन करते हुए कहा, My hand got stuck because there's a magnet not in my hand but in my heart. Urvashi chose a silver sari for the event which had a black floral print. She added a black sleeveless blouse and kept her hair and makeup simple to complete her look. उन्होंने अपनी साड़ी के साथ पहना एक diamond bracelet or studs which added to her beauty. But while she may have looked great at the press meet, उर्वशी के एयरपोर्ट लुक को रिसेंटली ट्रोल किया गया क्योंकि उन्होंने अपने बालों में बच्चों के हेयर क्लिप्स लगाए थे. Many netizens asked why she had chosen hair clips worn by little girls and trolled her for her fashion choices. Well, trend ho ya troll ho, Urvashi seems to be going places for sure. Well, here's hoping कि उनकी वजह से और किसी बड़े शॉक को शॉक ना लगे. टीवी स्टार्स एंड सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज अक्सर अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहते हैं. फैशन स्टेटमेंट्स, फाइट्स या फिर फेरी टेल रोमांसेस एंड वेडिंग्स. Fans love to hear all the latest updates from the lives of their favorite small screen celebs. So let's check out आज के small screen खबरों का roundup. Here it is. उर्फी ने तुनिशा शर्मा के केस पे कमेंट करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया है. उर्फी ने एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफर करते हुए कहा कि भले ही शीजान ने तुनिशा के साथ ब्रेकअप किया हो, लेकिन वो उनकी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं माने जा सकते हैं क्योंकि जबरदस्ती रिश्ते नहीं बनाए जा सकते. She also offered support and hope to other young girls and encouraged them not to lose heart over a breakup or any other reason. उर्फी ने ऐड किया कि हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकल आता है और इंसान को कभी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए. We hope people are inspired by her words and seek help instead of taking drastic measures. Shizan Khan is in police custody after the late Tunisha Sharma's mother filed a police complaint accusing him of abetting her daughter's demise. Shizan को पुलिस इंटरोगेट कर रही है और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. However, the way Shizan was dragged by the authorities to court has shocked netizens. Shizan के पैरों में शूज भी नहीं थे और पुलिस ऑफिशियल्स उन्हें नंगे पैर घसीटते हुए कोर्ट में ले गए. नेटिजन्स ये देख के बहुत हैरान हैं क्योंकि अब तक शीजान पर लगाए कोई भी इल्जाम प्रूव नहीं हुए हैं और ना ही उन्हें कोई जुर्म करते हुए पकड़ा गया है. शायद मीडिया से बचाने के लिए उनके साथ धक्का मुक्की हुई, बट इट सीम्स अ बिट अनफेयर टू इल ट्रीट अ पर्सन हु हैज ओनली बीन अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम एंड नॉट प्रूवन गिल्टी येट. I wanted to clear. मैंने कुछ मैसेजेस, कुछ ट्वीट्स पढ़े दैट एक इंटरव्यू के दौरान पीछे एक लड़की आप लोगों को दिखी. आई जस्ट वांटेड टू क्लियर कि शी इज़ दिशा, शी इज़ माई मैनेजर, शी इज़ हैंडलिंग ऑल माई वर्क. एंड जिस वक्त ऐसा आप लोगों ने देखा उस वक्त मेरी पूरी PR टीम, माई मैनेजर, माई सोशल मीडिया हैंडलर, एवरीबडी वाज देयर विद मी. अंकित गुप्ता बिग बॉस 16 से एविक्ट होने के बाद इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं. However, एक इंटरव्यू के दौरान eagle-eyed fans noticed a woman arranging pillows and sitting on the bed behind him. Speculations began कि अंकित की लाइफ में कोई नई आ गई है and that he has moved on from his rumored girlfriend प्रियंका चाहर. लेकिन अंकित ने जल्द ही क्लैरिफिकेशन इशू किया और कहा कि कैमरा पर जो लोगों को दिखाई दी वो उनकी मैनेजर थी. He added कि मीडिया इंटरव्यूज के दौरान उनकी PR टीम, सोशल मीडिया मैनेजर और मैनेजर सभी मौजूद रहते थे क्योंकि उन्हें कई सारे लोगों से बात करनी थी. शालिन भनोत को गुस्सा क्यों आता है? Looks like there is plenty of drama coming on Big Boss season 16. अर्चना गौतम, विकास मनकतला, प्रियंका चाहर चौधरी और शालिन भनोत के बीच एक और महायुद्ध होने वाला है, जिसके बाद शालिन गुस्से में आकर घर का सामान तोड़ने लगते हैं. He is also seen warning Big Boss to open the door for him. शालिन फिर कन्फेशन रूम में जाते हैं और वहां रोते हुए कहते हैं, इतनी बेइज्जती नहीं झेल सकता, गंदे लोग रहते हैं यहाँ पर. He is then seen asking Big Boss to open the door so he can leave. क्या उनकी रिक्वेस्ट स्वीकार होगी या फिर सलमान लेंगे शालिन की क्लास?
And just like that, we come to the end of another episode of Planet Bollywood, promising to be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, don't forget to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities on the go. And on that note, this is me, Manish, signing out, saying ciao.